इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बैंक कम्युनिटी ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 महान मे दिवस जिंदाबाद 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 बैंक कम्युनिटी ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 শ্রমিকের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ শ্রমিকের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ মে দিবস জিন্দাবাদ 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 মে দিবস জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত দিন শোধ করো শোধ করো শোধ করো শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত দিন শোধ করো শোধ করো শোধ করো শহীদ আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলবো না ভুলিনি ভুলবো না শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ ইনকলাব জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया ब्रांचेज के तरफ से बैंक ऑफ इंडिया के डलहौसी मेन ब्रांच में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उपस्थित थे संजय दास, जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया ब्रांचेज, श्री तरुण शाह एडवाइजर, श्री अभिजीत मंडल प्रेसिडेंट, श्री देवाशीष मंडल एवं विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। আপনাদের কোঅপারেশন অবশ্যই কাম্য। সমস্ত অফিসার এবং কমিটি মেম্বাররা সর্বোপরি কমিউনিস্ট যারা আজকের এই মহান দিনে আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের সেই সংগ্রামটাকে স্মরণ করার জন্য আজকে আমরা সমাবেত হয়েছি। ভাবে প্রাসঙ্গিক, যেটা আজ থেকে প্রায় 138 বছর আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের মাধ্যমে যেটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল যে 8 ঘন্টা কাজের দাবি। আগে কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষকে কাজ করতে হতো, শোষণ দমন নিপীড়নের মধ্যে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হতো। সেখান থেকে তারা কিন্তু লড়াই করে 8 ঘন্টা কাজের দাবিতে এবং একটা সুন্দর ওয়ার্কিং অ্যাটমসফিয়ারের দাবিতে তারা কিন্তু আন্দোলন করেছিলেন। 7 জন সেখানে মারা গেছিলেন, আপনারা জানেন যে রক্ত দিয়েছিলেন। সেই জন্য আজকের দিনটাকে আমরা চয়েস করে নিয়েছি যে রক্তের মাধ্যমে আমরা যেটাকে পেয়েছি, রক্ত দিয়ে আমরা সেটাকে সেলিব্রেট করবো। আজকের থেকে আমার মনে হয় কোনো ভালো দিন হতে পারে না যারা আমরা এই শ্রম দিয়ে আমাদের রুটি রুজি জোগাড় করি, তারা রক্ত দিয়ে যদি আমাদের এই রুটি রুজিকে যদি সংরক্ষণ করতে পারি, যদি আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, অধিকার আমাদেরকে যদি টিকিয়ে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আজকে এই মে দিবসের সার্থকতা। এবং বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরে শোষণ দমন নিপীড়ন নিষ্পীড়ন চলেই যাচ্ছে। আজকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তো শোষণ দমন নিপীড়নের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে। শোষণ দমন চলছে, তবু মানুষ বলছে না ওটুকু তো হবেই, কিন্তু সেই অধিকারটা আমরা জানি না। মানুষ হিসেবে বাঁচার কি অধিকার, দেশের নাগরিক হিসেবে বাঁচার কি অধিকার, আমার পরিবারকে সময় দেওয়ার কি অধিকার, সেই অধিকারটা আমরা ভুলে গেছি। আজকে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের আমরা কথা বলি, যে 5 days উইকের কথা বলি, যে রেগুলেটেড ওয়ার্কিং আওয়ার্সের কথা বলি, সেটা সবটাই কিন্তু শুরু হয়েছিল সেই 1886 সালের আজকে। তারা যে লড়াই শুরু করেছিলেন, আপনারা জানেন এবারে বাইপাটার চুক্তির মধ্যে আছে যে 4 দিন হাফ ডেজ ইয়ার। এটার মাধ্যমে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে সরকার কিন্তু মেনে নিয়েছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর একটা অধিকার আছে তার ফ্যামিলি লাইফকে মেনটেন করার জন্য 8 ঘন্টার কাজে তার যে দাবি, সেই দাবি কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই গ্যারিবেসির দাবির মাধ্যমে। আগামী দিনে আমরা হয়তো 5 days উইক পাবো এবং আগামী দিনে হয়তো আমাদেরকে বিনা লড়াইয়ে, আজকে যেমন যুব সমাজ লড়াই করতে ভুলে গেছে, যুব সমাজ লড়ছে না, বলছে না সংজ্ঞা বদলে গেছে, শোষণ দমন নিপীড়নের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে। আজ থেকে 10 বছর আগে যে কাজটা কর্তৃপক্ষ করলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে নেমে পড়তাম, আজকে বলছে না ওটুকু তো হবেই। মানে ধরে নিয়েছে যে আমরা কৃতদাসত্বের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে সেইখান থেকে কিন্তু যুব সমাজকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেদিন আসছে, আগামী দিন আসছে যখন মানুষকে আর বলতে হবে না যে তুমি লড়াই করো। যখন মানুষের পেটে যখন লাত পড়ে, তখন কিন্তু মানুষ স্বাভাবিকভাবে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে চলে যায়। তো আমি আশা করব আজকের এই যে রক্তদান, সেই রক্তদানকে আপনারা সার্থক করবেন। যারা যে রক্ত দেবেন তাদেরকে আমি অন্তরের তরফ থেকে আমি রেড স্যালুট জানাচ্ছি। কারণ
আমাদের হয়ে গেছে। दिवस में हम लोग को एक ही शपथ लेना है कि बैंक में जो लोग काम करते हैं या सारे हिंदुस्तान में जो श्रमिक श्रमदान करते हैं उनके समर्थन में आज जो दिन है ये दिन को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार जो है, संवैधानिक जो अधिकार है, ये अधिकार को बरकरार रखने के लिए हमारे जो कर्म संस्थान को और बढ़ाने के लिए, और हमारे जहाँ काम करते हैं वहाँ काम का जो परिस्थिति है उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ताकि लोग अच्छा ढंग से काम करें। हम लोग देखिए अभी 5 डेज वीक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट है। हम काम का साथ साथ हमको परिवार को भी समय देना है, परिवार को हम समय दे पाए, हम खुशी खुशी काम करें और देश के लिए हम सेवा दें, यही हमारे उम्मीद है सरकार के प्रति। इसीलिए हम चाहेंगे कि श्रमिकों का जो कर्म करने का जो संस्थान है और जो वहाँ का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को और उन्नत करेंगे, और हमारे जो मांगे हैं ये जो 5 डेज वीक है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स है, वर्क लाइफ बैलेंस है, इसको थोड़ा सा इसको मान्यता दे। सर, क्या आपको लगता है कि जो सरकार को और उद्योगपतियों को मजदूरों को लेकर के सोचना चाहिए उनकी उन्नति के लिए? हाँ, देखिए अभी ये देश की सबसे बड़ा समस्या है महंगाई। देश की सबसे बड़ा समस्या है कर्म संस्थान को सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ियों को पास नौकरी का प्रावधान नहीं है, ये सब को लेकर के, और हमारे जो इनइक्वालिटी है आर्थिक रूप से आप अगर देखिएगा तो देश की 1% की 2% जो कैपिटलिस्ट है उसका हाथ में देश की सारे संपत्ति चला जा रहा है, और बाकी लोग भूखा मर रहे हैं। अभी हमारे प्राइस इंडेक्स देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, रुपये का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ गिरते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार को ये नज़र देना चाहिए, क्योंकि एक देश की प्रगति सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है उसी को लेकर के चलना है। सबका साथ मीन्स सबको। ये जो हमारे आर्थिक जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ख़त्म करना है, क्योंकि देश के युवा भूखा मर रहे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, सारे लोगों को बातें सुननी चाहिए। और हमारे बैंकर लोग जो है ये सर्विस देते हैं, इन लोगों को ये जो वर्किंग एटमॉस्फेयर ये थोड़ा सा इसका सुधार होना चाहिए। 8 घंटे जो काम को लेकर के आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, क्या लगता है कितना प्रोग्रेस हुआ ये? देखिए 8 घंटा ये काम करने का प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस तो जरूर हुआ है। अभी हमारे इस जो वेतन चुक्ति जो समझौता वेतन समझौता जो स्वाक्षर हुआ है उसमें हमको 4 दिन का ये जो हाफ डे सीएल मिला है। इसका मतलब है गवर्नमेंट इसको मान्यता दे रहे हैं, लेकिन 5 डेज वीक जो हमारे मांग था 2015 से, इसका अभी तक उसका हल नहीं हुआ है। ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल कर दे, ताकि लोग खुशी खुशी बैंक में काम करें और वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है उसको अच्छा करें, और कम से कम 6 साढ़े 6 के बाद लोग घर जा सके, ताकि उसका परिवार का साथ समय दे, और दूसरा दिन खुशी खुशी लॉट में एनर्जी आकर के बैंक में काम करें। कितने लोग आज रक्तदान करेंगे? आज रक्तदान करेंगे करीब 100 से 125। ये जोनल बैंक के हैं क्या, मतलब ब्रांचेज के हैं? ये हमारे कोई ब्रांचेस का नहीं है, ये बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का पूर्वी इकाई की मतलब क्या, बर्धमान, हावड़ा, कलकत्ता का जो लोग नज़दीक है, जो लोग आ सकते हैं, वही लोगों को लेकर के आज का रक्तदान। ठीक है, थैंक यू।